افسوسناک خبر دیں آپ کو ضلع لسبیلا سے، جہاں درگاہ شاہ نورانی کے قریب دھماکہ ہوا اور دھماکے میں متعدد افراد زخمی، جبکہ ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر روانہ ہو چکی ہیں۔ دھماکے کے وقت مزار پر زائرین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ابتدائی طور پر اپنی مدد آپ کے تحت لوگ وہاں پر اسپتال منتقل ہو رہے ہیں، وہاں پر کام شروع کر دیا۔ بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں اور مغرب کے بعد یہاں پر دھمال کیا جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مغرب کے بعد کا وقت رکھا گیا دہشت گردوں کی جانب سے دھماکے کے لیے۔ بڑی تعداد میں وہاں پر زائرین ہوتے ہیں۔ 15 افراد اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہو گئے۔ دیدار علی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیدار بتائیے گا، 15 افراد جاں بحق ہو گئے؟ جی بالکل، یہ شاہ نورانی میں جو دمال کے بیچ میں دھماکہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب تک 15 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور زخمیوں کی تو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ زخمی بھی بہت زیادہ لوگ ہوئے ہیں، کیونکہ دمال کے بیچ میں دھماکہ ہوا ہے۔ دمال میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہ دھماکہ کس نے کا تھا تاہم یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آیا خودکش دھماکہ تھا یا کوئی دھماکہ خیز مواد رکھا گیا تھا، لیکن ریسکیو ٹیمیں وہاں پر روانہ ہو چکی ہیں، پہنچ رہی ہیں، انتظامیہ بھی وہاں پر پہنچ رہی ہے، جس کے بعد ہی کچھ پتہ چلے گا کہ آیا مزید ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں 15 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع آ رہی ہے۔ جی 15 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، دیدار آپ بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ کافی افراد ایسے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو کیا بھی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے؟ ریسکیو ٹیمیں ابھی وہاں پہنچی ہیں یا پہنچنے والی ہیں؟ جی کرن، یہ بالکل ایک پہاڑی علاقہ ہے، دور افتادہ علاقہ ہے، وہاں پر ابھی تک ریسکیو ٹیمیں پہنچ بھی نہ پائی ہیں۔ یہاں سے وہ ریسکیو ٹیمیں روانہ تو ہو چکی ہیں، لیکن تاحال ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچی ہیں۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچیں گی تو ان کو زخمی کو ریسکیو کریں گی، ان کو یہاں پر ہب لایا جائے گا، ان کو یہاں پر ابتدائی طبی امداد دی جائے گی، پھر کراچی ان کو منتقل کیا جائے گا طبی امداد کے لیے۔ جی دیدار یہ بتائے گا کہ یہ دھماکہ ایگزیکٹلی ہوا کس طرف ہے؟ مزار کے احاطے میں ہوا ہے؟ دھمال کس طرف کرتے ہیں زائرین؟ یہ شاہ نورانی کے مزار اوپر پہاڑ کی طرف ہے، نیچے بالکل مزار کے نیچے ہی ایک میدان ہے جہاں پر جو ہے وہ اتوار کے دن جمعرات کو وہاں پر دھمال ہوتی ہے، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر دھمال میں شرکت کرتی ہے۔ تو وہاں پر یہ جو زوردار دھماکہ ہوا ہے اور یہ حادثہ وہاں پر پیش آیا۔ اچھا دیدار یہ بتائے گا کہ دھمال زائرین کیا صرف کوئی دن ان کا متعین ہے، یعنی کہ ہفتہ، اتوار، جمعرات، یا ہر روز مغرب کے بعد وہاں پر دھمال ہوتا ہے؟ نہیں، ان کے دن مقرر ہوتے ہیں۔ جمعرات کو بھی وہاں پر دھمال ہوتی ہے، ہفتے کو بھی ہوتی ہے، اور اتوار کو بھی وہاں پر دھمال ہوتی ہے۔ تو رات کو بھی، کل بھی وہاں پر دھمال ہوئی تھی، اور آج بھی جو ہے وہ دھمال کا دن تھا، آج بھی وہاں پر دھمال ہوئی تھی، جبکہ حکومت بلوچستان اس سے پہلے بھی تھریڈ ملے تھے جس کی وجہ سے اسکولوں میں چھٹی کی گئی تھی کہ خودکش بمبار داخل ہو چکے ہیں، لیکن تاحال اس طرف حکومت کا رجحان نہیں گیا تھا، اور اس طرف اسکولوں میں چھٹی کی دیدار آپ بتا رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا اسکولوں میں چھٹی دی گئی تھی کہ دہشت گرد داخل ہو گئے، تو کوئی یہاں پر کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی اقدامات دیکھے تھے آپ نے اس مزار میں؟ نہیں، مزار کی طرف بالکل، اس طرف حکومت کی طرف حکومت کی بالکل توجہ نہیں گئی تھی کہ آیا اس طرف بھی کوئی ایک مزار میں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے صرف بڑے جو شہر تھے کوئٹہ، خلدار یا اب دوسرے، وہاں پر سیکورٹی کے کچھ انتظامات کیے تھے، اسکولوں میں چھٹیاں کرائی تھی، لیکن اس طرف جو ہے حکومت کے دھیان اس طرف نہیں گئے تھے کہ مزار کی طرف بھی کوئی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ جی اچھا یہ بتائے گا دیدار کہ یہاں پر کوئی کیمرے ویمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس مزار میں؟ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کا انتظام ہوتا ہے؟ نہیں، وہاں پر تو اس طرح کی کوئی انتظامات نہیں ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے یا کوئی انتظامیہ کی طرف سے ایسی کوئی سیکورٹی بھی خاص نظر نہیں آتی ہے۔ یا ضلع لسبیلا آتے وقت کوئی ناکہ، کوئی چوکی پڑتی ہے کہ وہاں پہ چیکنگ ہو لوگوں کی جو آ رہے ہیں زائرین؟ ہاں بالکل، چوکیاں یہاں سے ہب سے لے کر شاہ نورانی تک بیچ میں کئی چوکیاں پولیس کی بھی ہیں، لیویز کی بھی ہیں، جبکہ ایک ایف سی کی چوکی بھی وہاں پر ہے، لیکن وہاں پر زیادہ تر زائرین کی تلاشی نہیں لی جاتی ہے۔ وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، معمولی کے مطابق ان کی چیکنگ ہوتی ہے، زیادہ چیکنگ ان کی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا دیدار یہ بتائے گا، آپ نے بتایا کہ 15 افراد اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہو گئے ہیں اور کئی افراد ایسے ہیں جو زخمی ہوئے ہیں، تو یہ بتائے گا کہ جاں بحق ہونے والے افراد میں کیا خواتین اور بچے بھی شامل ہیں؟ جی بالکل، دھمال میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، تو خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ جو جاں بحق ہوئے ہیں ان میں بھی
खवातीन और बच्चे हैं, और जो जख्मी हैं उनमें भी खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 15 अफराद आपने बताया दीदार के इस अफसोसनाक वाक़े में जान बहक हुए हैं। जख्मियों की तादाद के बारे में एग्जैक्टली आपको नहीं अभी पता है कि कितने अफराद जख्मी हुए? जी बिल्कुल, जख्मी तो बहुत ज्यादा है और हलाकतों का भी मजीद खदशा बढ़ सकता है अभी तो, क्योंकि इलाका बहुत दूर है। जो इतलात आ रही हैं वो जो है यही आ रही हैं कि 15 जाँ बहक हो चुके हैं और तादाद इससे बढ़ भी सकती है और जख्मी भी बहुत ज्यादा तादाद में है। जी दीदार हमारे साथ मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को अफसोसनाक वाक़े से आगाह कर रहे हैं। जिला लसबेला में दरगाह शाह नूरानी के करीब धमाका हुआ है और धमाके में 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि हलाकतों का खदशा मजीद जाहिर किया जा रहा है। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वक़ुआ पर रवाना हो चुकी हैं और अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि धमाके के वक्त मज़ार पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इब्तदाई तौर पर अपनी मदद आप के तहत वहां पर जख्मियों को अस्पताल ले जाने का काम शुरू किया गया। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जुमरात, हफ्ता और इतवार के दिन ऐसे हैं जो इन दिनों में वहां पर धमाल किया जाता है। तकरीबन मगरिब के बाद फौरन वहां पर धमाल शुरू हो जाता है और शायद इसीलिए आज का दिन चुना गया होगा दहशतगर्दों की जानिब से, जब वहां पर धमाल हो रहा हो और बड़ी तादाद में वहां पर ज़ायरीन मौजूद हों। न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें और बच्चे भी दरगाह आते हैं, शाह नूरानी आते हैं। वहां पर ज़ायरीन बड़ी तादाद में, बच्चे और औरतें भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। दुश्वार गुजार रास्ते हैं, वहां पर करीब कोई अस्पताल न होने की वजह से इमदादी कामों में भी मुश्किलात का सामना है। दीदार अली हमारे साथ मौजूद है। दीदार, बताइएगा कि करीब तरीन अस्पताल हैं कौन कौन से वहां पर? वहाँ पर इतने बड़े अस्पताल तो नहीं है, छोटे बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, छोटे छोटे अस्पताल हैं और क्योंकि दूर अफ्तादा इलाकों में अक्सर जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो ड्यूटी भी इंतहाई कम करते हैं और कम ही वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनका इलाज, वहाँ पर उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देना बहुत ही मुश्किल होगा। तो कोशिश ये की जा रही है कि उनको फौरी तौर पर यहाँ पर बड़े शहरों में पहुंचाया जाए। हब तो या कहाँ बड़े शहरों में पहुंचाया जाएगा दीदार? जी बिल्कुल, उनके नजदीक हब शहर पड़ता है तो शायद सबसे पहले हब लाएंगे, उसके बाद फौरी तौर पर कराची नजदीक पड़ता है तो कराची मुंतकिल किया जाएगा जख्मियों को, ताकि उनको वहाँ पर तबी इमदाद दी जाए। ठीक है दीदार, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सैयद ज़ीशान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। ज़ीशान, अफसोसनाक वाक़या हुआ जिला लसबेला में दरगाह शाह नूरानी के करीब धमाका हुआ, जिसमें अब तक की इत्तला के मुताबिक 15 अफराद जाँ बहक हो गए और मुतादिद जख्मी हुए। बताइएगा कि जख्मियों की तादाद आप बता सकते हैं, कितने अफराद जख्मी हुए हैं? जी देखिए, शाह नूरानी का जो मज़ार है वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो आते हैं और मगरिब के टाइम पर यहाँ पर डेली का मामूल है कि यहाँ पर धमाल होता है और इसी धमाल के दौरान जो है ये वाक़या हुआ है। अब जो जख्मी अफराद हैं उनको जो है वो मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत का ये कहना है कि हेलो ऑपरेशन शुरू किया जा सकता था, मगर क्योंकि अब अंधेरा फैल चुका है और ये पहाड़ी इलाका है, लिहाजा हेलीकॉप्टर की परवाज़ें जो है वो इस वक्त मुमकिन नहीं है। फैसल ईदी जो है वो कराची से अपना कॉन्वॉय लेकर यहाँ पे रवाना हो चुके हैं। जो लसबेला में एम्बुलेंस मौजूद थी ईदी की, वो भी वहाँ पर रवाना हो चुकी हैं। तकरीबन 1.5 घंटे का ये फासला बनता है हब से लेकर जहाँ पर ये मदार वाक़ है वहाँ तक का, तो एम्बुलेंस को भी पहुँचने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है और काफी वक्त के अंदर लग सकता है। मगर बहरहाल कोशिश की जा रही है कि जख्मियों को खुशदार, लसबेला और बाद में कराची के सिविल अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाए ताकि उनका इलाज जो है वहाँ ज़ीशान, हब से जिला लसबेला का कितना फासला है, कितना वक्त लगेगा लसबेला से अगर मरीजों को हब लाया जाए जख्मियों को? किरण, कमोबेश 1 घंटा लग सकता है इसके अंदर, मगर क्योंकि अंधेरा हो चुका है और रास्ता पहाड़ी है लिहाजा 1 से 1.5 घंटा हम कह सकते हैं कि उनको करीब तरीन लसबेला में मुंतकिल किया जा सकता है अस्पतालों में। इसके बाद अगर उनको हब लाना पड़ेगा तो मजीद वक्त दरकार होगा, जबकि कराची लाने के लिए कम से कम 3 घंटे उनको दरकार होंगे। अभी यहाँ से कोशिशें की जा रही हैं, फैसल ईदी खुद रवाना हो चुके हैं अपना कॉन्वॉय लेकर और मरीजों को जो है वो यहाँ पर जो जख्मी अफराद हैं उनको यहाँ पर मुंतकिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर का कहा गया है, मगर वो सुबह के वक्त में ऑपरेट हो सकता है। इस वक्त जो है वो हालात वहाँ के ऐसे हैं कि हेलीकॉप्टर जो है वो ऑपरेट नहीं हो सकता है। जी ठीक है ज़ीशान, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जिला लसबेला में दरगाह शाह नूरानी के करीब धमाका हुआ और धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 15 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हुए हैं। ज़ीशान अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा जाँ बहक होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं? कितने औरतें शामिल हैं इस अफसोसनाक वाक़े में जो जाँ बहक हुआ और कितने बच्चे शामिल हैं? जी किरण, इस हवाले से कुछ भी कहना अभी कबल वक्त होगा। जो दरगाह के मुतवल्ली हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हलाकतें
बढ़ सकती हैं। अभी तक उन्होंने जो हलाकतें कंफर्म की हैं वो 20 कंफर्म की हैं, मगर जो सरकारी आदाद शुमार अभी तक बताए गए हैं हलाकतों के हवाले से वो 15 अफराद की हलाकत का बताया गया है, तमाम मुताबिक जख्मी बताए गए हैं। मगर यहाँ पर यही है कि खवातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो दरगाह पर पूरा दिन पूरी रात मौजूद होते हैं। लोग यहाँ से सफर करके जाते हैं और पहाड़ी इलाका क्रॉस करने के बाद दरगाह पर पहुंचते हैं, तो ज्यादातर लोगों का स्टे जो है वो दरगाह पर या उसके जो अहाता है उसके अंदर ही होता है। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो इसमें शामिल होती है। लिहाजा यही बताया गया है कि मरने वालों में खवातीन और बच्चों की तादाद भी शामिल है, जबकि जख्मी अफराद जो हैं उनमें भी खवातीन और बच्चे बड़ी तादाद में शामिल हैं। और दिशान, आप बता रहे हैं कि धमाल जो है वो मगरिब के बाद होता है और वो रोजाना होता है। लेकिन यहाँ पर जो रूटीन है वो यही है कि धमाल जो है वो रोजाना मगरिब के बाद जो है वो यहाँ पर होता है और तकरीबन आधे घंटे तक ये धमाल जो है वो जारी रहता है। और इसी दौरान बताया गया है कि ये धमाका हुआ है और इसके अंदर क्योंकि मदार का अहाता है और बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे, मर्द हजरात यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो दीगर छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं जो रेडी लगाते हैं, कौंचे लगाते हैं वहाँ पर, वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो लिहाजा हलाकतें जो है वो मजीद बढ़ सकती है क्योंकि काफी ज्यादा रश होता है यहाँ पर। ठीक है दिशान, बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद भी बात करेंगे। दीदार अली ने हमारे ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। इस अफसोसनाक वाक़े में 15 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी हुए, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर